Okay, good morning to all. So last classes we have discussed about the Laplace transformations for the various input signals, impulse and pulse for the RC circuit, RL circuit. Okay, and also some numerical problems last classes we have discussed. Now today also we are going to solve some numerical problems related to this simply RC, RL like circuits. So now I am giving the question just to try to solve. Try to solve this question, and these questions are very important questions. And you know the basic Laplace transformations and their inverse Laplace and all basic formula already discussed in the last classes. So today I am going one question, just try to solve simply applying KVL. Process is just similar. That last classes, that process, the similar process, you just apply in this question also and try to solve. So I am writing the question. So all of you just try to solve this question. So now, see here the question. Find, all of you just write the question. Find I of t in figure. That figure now I am just drawing. Figure following switching at t is equal to 0. Assume initial charge on capacitor 250 microcoulomb as shown in figure. Okay, so here the circuit is, see the circuit diagram, plus minus here. This is the R, now this is the capacitor. Okay. This is the current IT. This is the R, this is C, this is 1 ohm. Now this is minus plus, this is the 5 microfarad. Initial charge, suppose Q naught, now this plus minus 10 volt. Okay. So find IT in the following switching at t equal to 0. Assume initial charge on capacitor, that is the capacitor, that is charge is 250 microcoulomb. Okay, so just similar types. Last class we discussed in RC, just apply the KVL and everything like that. So try to solve. Also, I am solving here. So all of you just try to solve. Basic question is, this is a basic question related to this transient or RC, RL circuit, simply applying KVL, Laplace, inverse Laplace. Okay, the same procedure applied here. Same procedure. So all of you just try to solve. So you know that simply just represent the KVL equation in the differential form. So here IT, RIT plus capacitor is 1 by C IT dt is equal to V, or that is 10 volt. Okay. So हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ से R, यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, IS निकालना है, यही तो करते हैं हर बार. तो सिंपल वे में हम लोग फिर से वही लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेना है इसमें. जस्ट टेकिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, IS को सेपरेट करना है, IS को निकालना है और उसके बाद IS को क्या करना है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम लोग को लगाना है फॉर्मूला को सिंपल वे में. सो ट्राई टू सॉल्व, सिंपल है ना, बनाते जाइए, बनते जाएगा. अभी R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 1 ओम. सो R इक्वल टू 1 ओम में तो कोई मतलब ही नहीं है R का, यहाँ पर 1 कर देंगे तो IT ही बच रहा है ना. सो R इज इक्वल टू 1 ओम हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो IT
plus 1 by c. C, the value is what? 5 microfarad. So 5 into 10 ka power minus 6 microfarad, okay? Micro 10 ka power minus 6. IT dt is equal to 10. So now apply here Laplace transform. Taking Laplace transform. Laplace transformation. So IT means IS S domain plus this is also, you know that na IS by S plus Q naught by S. Okay, so here this is 5 into 10 का पावर माइनस 6 और इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा IS by S प्लस Q naught by S is equal to, या कुछ नहीं है तो स्टेप यूनिट 10 1 है तो 1 का 10 by S. ओके, सो अब क्या करेंगे? IS को कॉमन निकालना है यहाँ से. Q नॉट का वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Q नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है कितना दिया हुआ, 250 माइक्रोकूलम. यहाँ पर देखिए 250 माइक्रोकूलम. ये QS का हम लोग का Q नॉट का वैल्यू इनिशियल, क्योंकि यहाँ पर दिया एज्यूम इनिशियल चार्ज. यहाँ पर एज्यूम जीरो नहीं है, एज्यूम्शंस इनिशियल में जीरो नहीं है. यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस में जो वैल्यू है दैट इज 250 माइक्रोकूलम. इवन इज हियर 250 माइक्रोकूलम. ओके, 250 माइक्रोकूलम, 250 माइक्रोकूलम. तो जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट ही तो करना है. बहुत ही सिंपल है, बस सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा. चलिए इसका अप्लाई कीजिए. मैं 1 मिनट का समय दिया हूं, ठीक है? आकाश. यस सर. ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करो इसको. यस सर. सॉल्व करो. देखो Q नॉट का वैल्यू को क्या लेंगे यहाँ पर, इनिशियल चार्ज. ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो क्या है, थोड़ा सा अप्लाई करो यहाँ पर फॉर्मूला. इसको देखो, सबको ट्राई करो. ममता, अंकिता, देखो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. थोड़ा सा कोशिश करो, बन जाएगा क्वेश्चन. बेसिक लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही है. एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल, यहाँ Q नॉट का वैल्यू नेगेटिव लेना होगा. IS 1 by 5 10⁻⁶, ठीक है. करो, इसको हो जाएगा. फाइव इंटू 10 का पावर -6, 250 माइक्रोकूलम. यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जो लिखते हैं वो Q0 माइनस लिखते हैं. क्या लिखते हैं? Q0 माइनस. तो फॉर्मूला में लिखा था, उसमें क्या लिखते हैं? इनिशियली Q0 माइनस, जैसे I नॉट माइनस. So that's why Q naught is minus, means Q naught initial, that is minus 250 micro, means 10 का power -6.
This is Q naught. So here 250 into 10 का power minus 6 and 5 into 10 का power minus 6 divided by S is equal to 10 by S. So here 250 10 का पावर ये कट जाएगा 5 5 50 by S IS plus IS 10 5 into 10 का पावर minus 6 इसको उधर ले जाओ 10 का पावर S और ये हो जाएगा ये कट कैंसिल 5 5 50 plus 50 by S. So 10 plus 50 means 60 by S. So यहाँ से just कॉमन ले लो IS को 1 plus 1 by 5 into 10 का पावर minus 6. ठीक है अच्छा ओके S भी है यहाँ पर S is equal to 60 by S. So इसको सिंप्लीफाई करो IS is equal to 5 into 10 का पावर minus 6. तो इसको कैसे लिख सकते हैं सपोज 10 को हम इस पूरे पावर को ऊपर ले जाओ सो 10 5 2 into 10 का पावर 5 तो लिख सकते हैं इसको 1 plus 2 into 10 का पावर 5 ठीक है और ये S 60 by S. इसको यदि एलसीएम में लेते हैं क्या हो जाएगा S plus 2 into 10 का पावर 5 ये S is equal to 60 by S. तो S कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर ठीक है सो S कैंसिल आउट हो गया तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं IS is equal to 60 by S plus 2 into 10 का पावर 5 the S plus A. Now this is what? This is S plus A. S plus A का क्या होगा यदि याद हो रहा होगा E minus AT 1 by S plus A का इनवर्स लैप्लस क्या होता है E का पावर minus AT होता है ना now taking inverse Laplace transform then simply this one IT is equal to 60 into E का पावर 80 and 2 into 10 का पावर 5 T. So this is the find IT. The question is what? Find IT. So this is the answer. So just check once. So steps are very simple like that. Similarly, we have just applied KVL here. Then objective is to find out the IT. Okay, IT. So just simplify in this manner. We have to simple. This is the integrations. You know that the initials. This is the simple integrations. You know that the IS by this is the simple basic theorems. So apply here and now substituting the value and just simplify for the IS. Just separate out the IS. Now you know the Laplace transform of 1 by S plus A. Inverse of 1 by S plus A that is E ka power minus AT. So now this is the here A. But this is the here A. So this is the simple we have to write here at taking the inverse Laplace transform. And now this is the final answer of this question. So okay. So now okay. So I am giving one question again. So this question we just try to solve again. And take a screenshot of this. Write down one question, a very basic question this is. For the circuit shown, Rahul Kumar. Rahul Kumar.
for the circuit shown in figure. राहुल कुमार, आवाज आ रही है? आकाश, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. राहुल को नहीं आ रही क्या? करंट थ्रू द कैपेसिटर, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के बेसिक थ्योरम सब, जो भी इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम से लेकर इनवर्स लैप्लेस का फॉर्मूला, तुम लोग अभी तक कॉपी में एक जगह लिख करके याद किए हो कि नहीं किए हो? बस मैं ये जानना चाहता हूँ। यदि नहीं किए हो तो बस टाइम पास हो रहा होगा। किए हो ना सब? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सारा लैप्लेस का जितना फॉर्मूला है एक जगह कॉपी में लिख करके कम से कम एक बार इसको याद किए हो कि नहीं किए हो? आकाश, Yes, sir. बहुत जरूरी है याद करना। So for the circuit shown, obtain the current through the capacitor C at equal to 0 plus following switching at t is equal to 0. Assume the capacitor to be initially discharged, plus minus all of you draw this circuit. Okay, so this is what 10 volt here, this is the switch, this is the 2 ohm R. Now this is the current IT. Here 100 microfarad. Now this is the C. So इसको बनाओ, बन जाएगा। इसको कोशिश करो बनाने का सब कोई। इसमें भी सिंपली हम लोग को निकालना है क्या? फाइनल सर्किट फॉर्म द करंट करना, आईटी ही निकालना, सेम टू सेम। ठीक है, तो चलो इसको बनाओ और तुमको बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक ना, थोड़ा कोशिश करो बनाने का सब कोई। फाइनल आंसर थोड़ा सा बताओ कि क्या हो रहा है। मैं तो ऐसे बता ही दूंगा अभी। तो 2 मिनट दिए हैं समय, चलो बनाने की कोशिश करो इसको। चलो ट्राई टू सॉल्व। मिलन सागर, क्वेश्चन बन रहा है? मिलन सागर, हो रहा है कि नहीं? यस सर, बना रहा। फर्स्ट अप्लाइंग केवीएल।
Clear? This is simple. At t equal to 0 plus following switching at t equal to assume the capacitor to be initially discharged. बस यहाँ पर कैपेसिटर इज इनिशियली डिस्चार्ज, तो कैपेसिटर जब इनिशियली डिस्चार्ज है तब तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब तब तो मेरा यहाँ पर जो Q 0 माइनस हो या Q 0 प्लस हो, सबका वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू 0 प्लस 0। चार्जिंग डिस्चार्जिंग इनिशियली डिस्चार्ज है, इनिशियल कंडीशन हो, फाइनल कंडीशन वैल्यू हम लोग का यहाँ पर क्या है? 0 है। ये तो हम लोग एज्यूम करना है कि 0 है, सिंपल। तो इसमें तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें बनाना है। इसमें हम क्या करेंगे? जस्ट टेकिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। प्रीति कुमारी, कुछ प्रोसेस बढ़ रहा है ना? यस सर। बन रहा है क्वेश्चन, बन रहा है कि नहीं बन रही है? क्योंकि मैंने तो हर तरह से सारे लैप्लेस का कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। ये बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है, अभी बना रही हो? यस सर, ट्राइंग। ट्राइंग ठीक है, इसमें कुछ है क्या है? इसमें तो बस लैप्लेस लेना है, आईटी को फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस जस्ट अप्लाइड है, सेम प्रोसेस अप्लाइड है, सेम प्रोसेस। I think it's a Laplace transform 4 to 5 classes, Laplace transform only. Or this is I think 5 class. तो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या करना है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, करंट का क्या कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस क्या क्या है, सब तो बेसिक है। अब तो कुछ नहीं समझ, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बनाने। प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा डेली प्रैक्टिस करना होगा। सी है सिंपल। Now just separate the IS फाइंड आउट करो सब। तो प्रैक्टिस करना होगा, अपने से बताना होगा आंसर हमको, ठीक है? जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो बताना होगा कि सर हाँ ये आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, तभी जाकर के ही पता चलेगा कि क्या पढ़ाई हो रहा है। उसको फिर हम लोग का एस, हम लोग लैप्लेस में क्या जानते हैं? सारे फॉर्मूला एस प्लस ए, तो फिर हम लोग को इस चीज को कन्वर्ट करना होगा एस प्लस ए के फॉर्म में, है ना? यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? आर को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है? आर को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर, और एस यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एस प्लस 1 में आरसी हो जाएगा ये। आई एस इज इक्वल टू आर को वी बाय आर हो जाएगा, ये एस प्लस 1 बाय आर सी हो जाएगा, ठीक है? देखो अब फॉर्मूला में आ गया ये एस प्लस 1 बाय आर सी। यू नो दैट व्हाट इज दिस आर सी? आर सी द जस्ट टाइम कांस्टेंट। लेकिन हम लोग को यहाँ पर सारे वैल्यू दिया हुआ, आर का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। और वोल्टेज भी हम लोग को पता है, वोल्टेज भी पता है, आई एस इज इक्वल टू वी बाय आर एस प्लस 1 बाय आर सी। नाउ जस्ट टेकिंग द इनवर्स ऑफ दिस, taking inverse Laplace transform, taking inverse Laplace transform. So again simple, this is IT, this is V by R, now this is E minus T by RC. Okay, so you know all these values V, R and C, all values are known values.
So now just substitute all these value here. So what is the V here? You know that V is 10. Resistance is 2 E minus T divided by RC. R is 2 and C is 100 microfarad. That is 100 into 10 to the power minus 6. So IT is equal to 5 E minus T by 200 into 10 to the power minus 6. Okay. So this is the correct answer. This is the answer. Current means unit is ampere. The same process, KVL, Laplace transform, initial conditions. You just think about the questions. All questions are very similar, and just basic concept applied here. Basic formula of the Laplace transform. Clear? Harsraj, clear? Take a screenshot. Yes, sir. Take a screenshot of this. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ओके, ठीक है. क्वेश्चंस का बेसिक को समझना है. क्वेश्चन का बेसिक को समझने से ही सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. और मैंने उस दिन कुछ क्वेश्चंस भी दिया था बनाने के लिए कि सब प्रैक्टिस करने के लिए लैपलेस का. तो सब क्वेश्चंस को भी जो है कि बना कर रखो. ठीक है. तो चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन ही दे रहा हूँ. चलो बनाओ इसको फिर से. नेटवर्क का सारे टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके सारा चीज बताया हूँ. बस तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो. कॉपी को मैं नोट्स बनाओ, देखना सारा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा. राइट द क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन नंबर 3. So question, okay, very simple question I am giving. Apply nodal analysis you know the basic of nodal analysis to find the voltage at node A in the circuit of figure, जो भी फिगर है, in S domain में फाइंड आउट करना है. Assume initial current through the inductor to be 0. So this is the circuit. Yeah, this is the node A. R1, this is R2, this is inductor F, this is plus minus, this is E, this is the switch K, here node. So you know that nodal analysis है ना, simple. तो बस वोल्टेज इक्वेशंस को लिखना है यहाँ पर जस्ट वोल्टेज इक्वेशंस को लिखना है. और कैपेसिटर के केस में भी क्या, इंडक्टर के केस में क्या होता है, तो उसको तो बस मैंने बताया था ना. इंडक्टर के केस में इसको कैसे, इंडक्टर में कैसे हम लोग लिखते हैं. इंडक्टर में इनिशियल करंट SL और क्या लिखते हैं, LI0. इसका इक्विवेलेंट हम लोग बना करके उसमें जस्ट अप्लाई द नोड एनालिसिस, वोल्टेज एट नोड लो. अरे उसके बाद लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. कुछ है नहीं, इसमें कुछ वैल्यू नहीं करना है, बस इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है. इसमें कोई वैल्यू हम लोग को नहीं दिया गया है. इसमें बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि इक्वेशंस को लिख रहे हैं बस. ठीक है. और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो चलो इसको ट्राई करो. और क्या ट्राई करो.
मैंने बताया था टाइम डोमेन टू एस डोमेन के लिए जो लिखना रहता है, इंडक्टर के केस में, कैपेसिटर के केस में, तो वही सब तो है यहाँ पर भी। यदि तुम लोग सर्किट को भी बनाना चाहेगा तो बना सकते हो। मैंने क्या बताया था इसमें, याद करो, याद करो, मैंने इंडक्टर को चेंज करके क्या बताया था, टाइम डोमेन एस डोमेन एनालिसिस में मैंने बताया था सारा चीज। ये इंडक्टर है, इनिशियल कंडीशंस, एस डोमेन में मैं बता दे रहा हूँ सर्किट बना करके, एक्चुअली इक्वेशन लिखूंगा तो वही लिखूंगा। मैं सर्किट भी बता दे रहा हूँ कि सर्किट मैंने एक बार बताया था सब कुछ, ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूँ यदि भूल जा रहे हो तो। ठीक है, दिस इज द नोड है वी एस R1 एंड R2, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह से ही मैंने बताया था ना कि जब कोई इंडक्टर है तो इंडक्टर में तो हम लोग वैल्यूज को कैसे लिखते हैं, एस डोमेन में, लैप्लस डोमेन में। तो अब क्लियर हो गया होगा। सो अब इसमें यदि हम लोग नोड, इस नोड पे यदि हम लोग लगाते हैं नोडल एनालिसिस, नोडल इक्वेशंस एट नोड ए, नोडल इक्वेशन एट नोड ए, नोड ए पर इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। मान लो इधर करंट आ रहा है, इधर निकल रहा है, I1 इजिकल टू I1 प्लस I2, याद आ रहा होगा। तो चलो इसका बताओ तो क्या हो रहा है, नोड एनालिसिस करके कितना हो रहा है सुमित्रा कुमारी, इसका नोड एनालिसिस करके जो हम लोग का क्या निकालना, VA निकालना, फाइंड द वोल्टेज, मतलब VAS निकालना। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, फाइनल एस डोमेन में, मतलब इस सर्किट के लिए, ठीक है। तो इसका नोडल एनालिसिस करके बताओ फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है हम लोगों का। वैल्यू तो दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को पुट कर देना है। यदि ये दो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ रहेगा, इंडक्टर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ना। तो क्या होगा इसका बताओ, इक्वेशन लिखने के लिए आ गया तो उसमें उसके बाद तो कुछ है नहीं, वैल्यू दिया हुआ रहेगा, पुट कर देना है, इनवर्स लैप्लास निकाल लोगे तो वोल्टेज टाइम डोमेन में भी निकल जाएगा। अभी यहाँ पर तो नोडल एनालिसिस का जो सिंपल हम लोग मेथड जानते थे, इधर से करंट आ रहा है, इधर इंटर कर रहा है, तो मतलब VA/R1 प्लस VA/R2 ऐसे ही तो होगा ना, ठीक है। और इधर से क्या क्या आ रहा है, यहाँ से देख रहे हो ये E/S। चलो लिखो और बताओ इसको क्या हो रहा है। इसका इक्वेशन लिख करके बताओ ममता कुमारी। यस सर। इसका इक्वेशन बताओ कैसे लिख रही है, इसका इक्वेशन कुछ समझ में आ रहा है कैसे लिखना है। हम लोग को VS फाइंड आउट करना है, जैसे नोडल एनालिसिस में फाइंड आउट करते थे ना। नोड यहाँ पर दिया हुआ है, इसको वोल्टेज इक्वेशंस को लिखना है बस, बहुत सिंपल है। यहाँ से करंट यदि इंटर किया, दोनों तरफ से निकला है, ठीक है, इतना इजिकल टू इतना इजिकल टू टोटल ये वाला। देखो कुछ इस तरह से, देखो मैं मैच करा लो, और यदि मैं इधर प्लस ही कर देता हूँ तो बस खाली साइन चेंज हो जाएगा। बेसिक नोडल इक्वेशन जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर बस हम लोग को एस डोमेन में करना है, SL इक्वल टू 0, बस यही है। VA निकालना है, VA को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/SL इज इक्वल टू E/S प्लस LI 0 प्लस
इनिशियल क्वेश्चन इज सी द क्वेश्चन इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर टू बी जीरो, जितना भी करंट है सारा जीरो हो जाएगा। आई जीरो प्लस इजिकल टू जीरो, ये गिवन है तो ये जीरो हो जाएगा। कुछ करना नहीं था इसमें, बस इक्वेशंस को फाइंड आउट करना था। तो वी ए एस इक्वल टू, इसको बस सॉल्व करो। सॉल्व करना क्या है, ये तो बस R1 R2 इसको तो बस एलसीएम लेना है, ठीक है। इसको तो बस एलसीएम लेना है, एलसीएम लो, इसको सॉल्व कर लो। तो देखना यदि इससे एलसीएम लेते तो क्या होगा, R1 R2 SL, तो SL SL कैंसिल हो जाएगा, तो R1 R2, तो ये हो जाएगा R2 SL, ठीक है, R2 SL और E बाई एस, ये तो जीरो हो गया पूरा। सो E बाई एस, ये तो जीरो हो गया ना, ये पूरा जीरो हो गया। सो E बाई एस, और ये जाएगा उधर तो पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा R1 R2, क्योंकि SL SL तो कट जाएगा यदि एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा। इतना थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना तुम लोग कॉमन आता ही है सारा चीज। SL R2 एंड प्लस SL R1, ये मेरा हुआ। यदि सारे वैल्यू हम लोग को पता रहता, वैल्यू को पुट करने के बाद हम लोग बस इसका यदि इन्वर्स करेंगे तो टाइम डोमेन के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एस के फॉर्म में तो है ना, L R2 सारा वैल्यू पता रहता हम लोग को। यहाँ पर यदि सारा वैल्यू हम लोग को पता रहता तो इसको हम लोग टाइम डोमेन पे भी निकाल सकते थे, इन्वर्स करके, टेकिंग इन्वर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब बेसिक को समझो कि हम लोग के पास यदि कोई वोल्टेज यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, तो नोडल का जो बेसिक नोडल जानते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ नया हम लोग नोडल एनालिसिस कर रहे हैं। सेम टू सेम नोडल एनालिसिस है, बस यहाँ पर हम लोग टाइम डोमेन नहीं, एस डोमेन, लैप्लेस डोमेन पे हम लोग इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। लैप्लेस डोमेन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब बेसिक, बहुत ही बेसिक, मतलब जो बेसिक हम लोग जानते हैं उसी का कॉन्सेप्ट का लगाना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एस डोमेन पे फाइंड आउट कर रहे हैं। और एस डोमेन के केस में, इंडक्टर कैपेसिटर के केस में हम लोग कैसे वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग सारा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वही सब चीज को यहाँ भी हम लोग को अप्लाई करना है, यहाँ पर भी अप्लाई करना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग यहाँ पर कुछ नया करेंगे या कुछ ऐसा है। बस यहाँ पर जो हम लोग का इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, जो हम लोग जो फॉर्मूला सब जानते हैं, वो फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना है, और उस तरह से हम लोग को इसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा सबको, ये चीज क्लियर है यहाँ तक? सबको यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है क्या किसी को यहाँ पर अभी तक? नहीं ना? ठीक है, तो देखो, मतलब ओके, तुम लोग क्या करो कि फिर से इसको ज्वाइन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके, ज्वाइन है क्या? So okay, let us see one question. So write down all of you this question again. A 10 volt step voltage is applied across a RC series circuit, at t is equal to 0. Find IT at t is equal to 0 plus and obtain the value of di by dt t is equal to 0 plus. Assume R is equal to 100 ohm, C is equal to 100 microfarad. Okay. RC सीरीज सर्किट, RC सीरीज सर्किट, सर्किट को बनाने का भी जरूरत नहीं, सेम सर्किट है, दिमाग में तो बैठ गया होगा, RC है ना। उसके बाद एक वोल्टेज यहाँ पर लगा हुआ, टाइम t इक्वल टू 0 है,
ठीक ना। तो यहाँ पर हमको नहीं लगता कि कुछ भी यहाँ पर टफ लग रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है अगेन। ये तो इक्वेशन याद हो गया होगा सबको। ठीक है, इक्वेशन याद नहीं हुआ कि आरसी वाला सेम टू सेम इक्वेशन तो यहाँ पर ही होगा। आर आई टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी इजिकल टू भी। क्या क्लियर हो गया होगा ना अब तक? तो इतना तो बना लिए हम लोग। तो चलो सॉल्व करो इसको, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी ऐसा है क्या टफ लगेगा? सिंपल, यदि हम लोग सर्किट को यदि हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, जो भी है बना दिए। ये आरसी हो गया, ठीक है ना। आर आई टी 1/c आई टी डी टी, ठीक है, आई टी डी टी होगा इजिकल टू जो भी वोल्टेज भी, टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। करो इसको, सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करो यहाँ पर सब, बहुत इजी है, कुछ टफ तो नहीं है यहाँ पर। इक्वल 0 प्लस सी आर सी दिया हुआ है, टी 0 इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, आर सी टी इक्वल टू 0 पे। बस हो गया, फाइंड आउट करो सबको। यहाँ पर आई एस निकालना है, आई एस निकालना है यहाँ पर। तो फिर से वही कहानी, दिख तो रहा है, ये तो 0 हो जाएगा V बाई एस। भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट, है ना। तो इसको तो कोई भी निकाल सकते हो तुम लोग, आप तो शॉर्ट तो तुम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो कि आई एस इज इक्वल टू V बाई एस, V बाई एस, और ये हो जाएगा क्या, आर कितना दिया हुआ है? 100, आर प्लस 1/CS, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 100 माइक्रोफैराड CS, ठीक है। निकालो इसको, सारे वैल्यू को पुट करो पहले। आई एस इज इक्वल टू, देखो निकालो सबको, सबका वैल्यू तो पता है यहाँ पे, 10/s, आर का वैल्यू कितना है? 100 प्लस 100 माइक्रोफैराड, मतलब 10 का पावर माइनस 6, 10 का पावर माइनस 6 इंटू 100, 10 का पावर तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 6, 10 माइनस 4, तो ऊपर चल जाएगा 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई एस, होगा कि नहीं सर? अब इसको तो हम लोग कर ही सकते हैं कन्वर्ट, एस को निकाल लेते हैं, एस को कॉमन निकाल लेंगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो करके देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल है। 100 बाई ये 1000 बाई एस, तो ये क्या हो जाएगा? 10, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, ये 100 का 10 प्लस ये 10 को कॉमन निकाल लेंगे, एक ऊपर वाला 10 कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बेसिक पढ़ा रहे हैं एकदम। एस को फिर यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा? 1 बाई प्लस 10s होगा ना। फिर 10 को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ये होगा क्या? देखो तो s प्लस 100 और ये 10, क्या क्लियर है ना? अभी तो फॉर्मूला में आ गया, आई एस इज इक्वल टू, आई एस इज इक्वल टू, देखो सिंपल सा फॉर्मूला में आ गया ये तो। अब 10s प्लस 100, एक जगह में 100 हो गया, सो टेकिंग इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म, तो दिस इज व्हाट? दिस इज आई टी, ठीक है, 1/10 मतलब 0.1 s e का पावर माइनस 80, e का पावर माइनस 100, और ये t। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? बट द क्वेश्चन इज ए di by dt, बट क्वेश्चन इज व्हाट? di by dt। तो di by dt क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और क्या है? क्वेश्चन इज द di by dt, सो
di by dt means just you have di t by dt, and the condition is t is equal to 0. So you know the formula, simple, e ka power x. E का पावर x is x, constant is constant, पार रहेगा e का पावर x, that is e का पावर x, और इसका करेंगे t का तो क्या होगा 100. इन डिफरेंशियल आता है ना सबको, ममता? इस डिफरेंशिएशन में कोई डाउट नहीं है ना, जो डिफरेंशियल मैंने किया e का पावर x वाला डिफरेंशिएशन? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो हो तो गया ये t इक्वल टू 0, तो e का पावर 0 का 0 हो गया, 1 हो गया, 0.1 और 0.1 इंटू माइनस 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10, -10 एम्पियर पर सेकेंड. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बता रहा है ना, di by dt, di by dt. So this is the answer of di by dt. The question C here again. Simple applying the KVL, simple applying Laplace transform, taking inverse, and now di by dt means rate of change of this current. So just differentiate this equation and just basic knowledge of the Laplace equations, Laplace transform, inverse Laplace transform, differentiation. So all basic concepts are applied here. So I hope that all of you understood this topic, that is the Laplace transform for RL, RC, for the different conditions, step, impulse, pulse, like that. Okay. So all of you just take a screenshot first. Okay, screenshot of this. Okay. So okay, I think this is clear now. Clear ना? आकाश सामान सब क्लियर है नहीं सब? तो ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करो और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास तुम लोग ज्वाइन करो. ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ.